am I audible to all of you? You are audible, but your voice is a little bit low, Again? but we can hear you. Okay. Shall we start? Okay. Have you seen my screen? Yes, ma'am. Okay. What about others? Mayura, are you there? Akshata, Pratiksha, Jayashree, Nikita, Rohan, are you here? Yes or no? Only Omkar is here. Just say to good morning. Mayura, Akshata, Pratiksha, Jayashree, all are slept. Hello. 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 Yes, ma'am. I'm not saying you, Omkar. What about others? They slept or what? They didn't say anything. Mayura, Akshata, Pratiksha, Jayashree, Rohan, where are you? Hello. 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 Akshata, are you there? Pratiksha, Jayashree. Oh God. Have you seen my PPT, Omkar? Yes, ma'am. Okay. Sorry. Today we have one second. Huh? It's a part of. Okay. Today we have seen EVA. It's a part of Unit 1. EVA means economic value added. We have seen some kind of problems here, and it's really easy to calculate a lot of performance of companies. Okay, so it's economic value added developed in York Consulting Firm. Okay, Stein Stewart and Company in 1982 to promote a value maximizing behavior in corporate managers. Okay, those who are working in corporate managers, those people are used to calculate EVA, like EMI and all and all. So value based measures to evaluate business strategy. Okay, capital project and to maximize long term shareholder wealth. It's really help us
calculate the business strategy if you plan. Yes, that kind of business strategy you have to follow, and you have to. So that time, any kind of capital projects you want to make it. So and how you calculate a profit, how you calculate the shareholders wealth. So that time EVA formula help you to show you the figure, to show you the exact results. So EVA sets a managerial performance target and link it to reward systems. Okay, if you want to um, pay some reward in your employee, manager, corporate, any kind of reward, so that time EVA formula help you. So unlike simple traditional budgeting, like economic value added focus on aims and not means. So let me see. So this is the definition, this is the chart of formula of economic value added. So EVA means, what is the formula? Simple formula is here. Net operating profit. Net operating profit minus taxes minus cost of capital is it EVA. Again I repeat, net operating profit minus taxes minus cost of capital. Okay. Now next. So how you calculate net operating after tax? Okay. We don't know how to calculate net operating profit, taxes, and cost of capital. So in the problem, all figures given you, and on that basis, you have to calculate first net operating profit, then taxes, what kind of taxes you need to pay if and it's also given in problem. Next, cost of capital. Okay, so we'll see a problem like that, calculating net operating after tax. Net operating after tax. Okay, so net operating after tax is easy to calculate. From the income statement, we take the operating income and subtract taxes. So it's a example of EXYZ company. Here are given some kind of sales, cost of goods sold, gross profit, selling general and admin expenses, operating profit, and taxes. So here they calculate net operating profit after tax, no PAT. Okay, so net operating profit after tax means टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो हमें क्या लगेगा ईवीए कैलकुलेट के लिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस minus cost of goods sold. So here we have all net operating profit is 2,02,000. Then taxes is 1,34,000 and cost of goods sold is 17 lakhs. Okay, so all figures are here, and on that basis we calculate EVA. Now what is cost of capital? Yes, am I audible? Yes, ma'am, you're audible, but your voice is a little bit low, but we can hear you. Jayashree. So try. Yes, now am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now voice is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So cost of capital. Okay, read this. 1 second. We'll just check my voice again.
Now is correct? Yes, ma'am. Okay. Just want to open a window. Okay. So, yeah. So, cost of capital means what? Cost of capital is the rate of return required by the shareholders and lenders to finance the operation of the business. What it is? Cost of capital is the rate of return. अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होंगी फर्स्ट सेम में था ना कॉस्ट शीट बेस एंड ऑल मैनेजरियल अकाउंटिंग में. So we have calculate cost of capital and it means the rate of return required by the shareholders and lenders to finance the operation of the business. जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ऑपरेशंस में लगाते हैं. सो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना. सारा प्रॉफिट जैसे नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं वैसे ही कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव कैलकुलेटेड. सो व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? that is equity capital, borrowed capital. Equity capital is provided by shareholders, है ना. शेयर सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हो जाता है तो उसे इक्विटी कैपिटल्स कहते हैं. जो शेयर जितने आपके शेयर्स परचेस करेंगे शेयर होल्डर्स, है ना, उतना क्या होगा हमारे पास मनी आएगा एंड दैट इज the equity capital. Then borrowed capital, it is the capital borrowed by the company from banks and other financial institutes. Many organizations needs a lot of loans, right? A lot of money to running their business because all monies are pending some due to some work or due to not completion of work. Therefore they banking and other institutions क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है कि इस तारीख को हो जाता है तो उनका एग्रीमेंट डन होगा. तो दैट इज बोरोड कैपिटल. बाहर से जो भी मिलता है वो बोरोड कैपिटल कहलाता है. नेक्स्ट, हैव यू सीन माय स्क्रीन? Yes, और नो? Yes, ma'am. यस. ओके. Now, so weighted average cost of capital. What it is? Weighted average cost of capital. So weighted average cost of capital examines the various components of the capital structures and applies the weighting factor of after tax cost to determine the cost of capital. So every value we need to calculate and that is a weighted average cost of capital. How we calculate? Here is the formula that long-term debt, preferred shareholders equity and total common equity. Okay, so both three items are here and on that basis you calculate total capital. Okay, long-term debt, preferred shareholder equity and total common equity, that is total capital. Got it? Now what is weighted average cost of capital? So long term debt means क्या? Bond cost. What it is? Some kind of bonds are here ना. आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉज एंड ऑल में कि एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में. तो बॉन्ड अगर आप परचेस करते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लॉन्ग टर्म का होता है. 20 ईयर्स का, 25 ईयर्स का, लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का. किसान विकास पत्र हो गया, इंदिरा विकास पत्र हो गए. सो ये जो शेयर्स होते हैं ये काफी लॉन्ग टर्म, आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स दे विल गेट अ बेनिफिट. सो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, है ना. हम लोग मतलब पहले बहुत काफी तो काफी आ गए हैं मार्केट में. इतने सारे शेयर होल्डर्स, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स, इतनी सारी LIC इंश्योरेंस. बहुत पहले नहीं था, पहले सिर्फ LIC था हमारा भरोसेमंद, अभी भी है. और कौन सा था अपना, ये 2 विकास पत्र थे, किसान विकास पत्र एंड इंदिरा विकास पत्र. तो लोग बहुत परचेस करते थे, मतलब जिनके पास भी ये 2 चीजें होती थी उनको बहुत ही मतलब ये समझा जाता था. अभी तो इतने सारे मार्केट में शेयर्स एंड ऑल आ गए हैं. सो बॉन्ड ₹100 का रहता था एंड नेट रिटर्न, अगर हमको इसका नेट रिटर्न निकालना है डिडक्टिंग डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, सो उसका रिटर्न था ₹96. इंटरेस्ट इस पे लगता था 14%.
ठीक है, एज्यूम अगर किया जाए तो 35% मतलब ₹5 के हिसाब से, और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आता था ₹9। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो हो गया आता था उस टाइम पे कितना था, ₹9.47। ठीक है, ऐसे लोग 10, 15, 20, 25, 40 ऐसा कैलकुलेट करते थे। तो ऑन दैट बेसिस हियर आपको ईवीए कैलकुलेशन, ऐसे छोटे छोटे ही प्रॉब्लम्स रहते हैं इसके, बट फॉर्मूला अगर आपका परफेक्ट है, जैसे हम लोग पीवी रेशियोस एंड ऑल कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपका फॉर्मूला परफेक्ट है तो यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट ईवीए। ठीक है, सो प्रिफर्ड कॉस्ट, स्टॉक कॉस्ट क्या होता है, जैसे प्रिफरेंस शेयर्स है आपके, ठीक है, प्रिफरेंस शेयर्स ₹100, नेट रेवेन्यू आपका 98 एंड डिविडेंड कितना हो गया 11%। सो ऑन दैट बेसिस कॉस्ट प्रिफर्ड शेयर इज 11.2%। ऑल फार्मूलाज आर हियर, आप देख रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं पीपीटी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, common equity cost. How we calculate common equity cost? Share price, it is ₹100. Net return, it's ₹85. EPS, estimated by investor and reliable analysis, is 12. And cost for common equity is 14.1%. सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, किसी को पूछना है कुछ? Do you understand what I am saying? Yes, ma'am. So calculation of weighted average cost of capital is for XYZ company. Here we have given everything like long-term debt is 5 lakh, cost ₹9.47. Total is it? कितना आया? 47. कैलकुलेट करके देखिए, 5 लाख डिवाइडेड बाय 9.47% करिए, कितना आता है? कम ऑन फास्ट। यस, यस आया? यस मेरा तो आया, आपका आया क्या? 5 lakh into 9.47%. Come on, fast. Yes. Yes, ma'am. बोलिए। Yes. Preferred stock cost. How we calculate preferred stock cost? Here is given 2 lakh. 2 lakh into 11.2%. How much it is? 22,400. Common equity cost is 7 lakh into 14.1%, and it is 98,700. So total capital we calculate 5 lakh, 2 lakh, 7 lakh, it's it 14 lakh, and total cost, total rupees 1,68,475. So now how we calculate the total weightage average cost of capital? Total wastage average cost of capital is equal to, right, 1,68,475 whatever divided by 14 lakh. So is it, how much it is? 12,003%. I calculate. Yes, ma'am. Good. Next, calculation of EVA for XYZ company. Okay, from Monday or Tuesday next week, so we are starting our AFM class in the evening 8 to 9. Okay, so be ready because it's a very vast syllabus and we need to complete it all. Even I will tell you how to prepare your SIP PPT. Okay, how many of you prepare?
Yes, yesterday Omkar and Siddhant is coming to check their project, and I am telling them lot of corrections. So those who are not coming, please visit today, and whatever the corrections, whatever the, देखिए कैसा होता है ना, जब आप ऐसे ऑनलाइन पीडीएफ भेजते हैं वहां पे ओके होता है, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकाल के लाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती है. सही है ना ओंकार? Yes, ma'am. यस. तो प्लीज आप फटाफट करिए, क्योंकि अभी डेडलाइन आ जाएंगे और आपका होगा ही नहीं तो फिर. नाउ कैलकुलेशन ऑफ ईवीए. ओके, अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कॉस्ट. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया हमारा? 2,02,000, जो ऑलरेडी हमें पहले इसमें दिया हुआ था. 2,02,000 जो यहां से लिया है हमने. देखिए ये देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था? 2,02,000. ये हमने पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, राइट? फिर यहाँ हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का निकाला 14 लाख. यहाँ पे हमने कॉस्ट निकाला वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. ठीक है, ये निकाला हमने 12.30%. सो फॉर्मूला इज दिस. कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें पहले दिया हुआ है प्रॉब्लम में 15 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने अभी निकाला 12.03%. सो कैपिटल चार्ज, ओके, 15 लाख, सॉरी 12.0.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 लाख. आप 15 लाख इंटू 12.03 भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा. करके देखिए आता है क्या? 1,80,450. यस, आया? आलं का? Yes, ma'am. Yes. Now economic value added, how we calculate? Rupees 2,02,000 divided by 1,80,450. Is it? कैलकुलेट करिए. 2,02,000 में से 1,80,450 माइनस करेंगे तो 21,550. Yes? Yes, Or ma'am. no? Okay. So on that basis you have to calculate EVA. अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेगा गिवन द इंफॉर्मेशन. देन आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना है. अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया है वो भी निकालना है. एंड एवरीथिंग जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो इस बेस पे, इस फॉर्मेट में आपको ईवीए कैलकुलेट करना है. अभी आपको समझ में आया कि ईवीए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कंपनी का बहुत बड़ा रिवार्ड सिस्टम है. ठीक है, एंड ऑन दैट बेसिस पे कंपनी क्या करती है? रिवार्ड देती है, प्रमोशंस भी देती है. सो स्ट्रेटजीज क्या है, क्या प्लान है अगर आपको इंक्रीजिंग करना है ईवीए, है ना? तो इंक्रीज द रिटर्न ऑन एग्जिस्ट प्रोजेक्ट जितने भी है उनके रिटर्न्स हमको बढ़ाने होंगे. अच्छा काम, अच्छा क्वालिटी का काम करना होगा. सो इम्प्रूव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. उससे क्या होगा? हमारा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा, है ना? प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, सेल अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हमारा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा. इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स दैट हैव अ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमें ऐसे कैपिटल्स पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेना है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना? देन यूज लेस कैपिटल टू अचीव द सेम रिटर्न. यूज लेस कैपिटल टू अचीव द सेम रिटर्न. ज्यादा कैपिटल में रिटर्न लेने से अच्छा है कम से कम कैपिटल, कम से कम, जैसे अभी स्टार्टअप्स में वगैरह करते हैं ना, जीरो से स्टार्टअप. सो आफ्टर 2-3 years यू विल गेट द रिजल्ट कि यस आपने जीरो से स्टार्ट किया था और आज आपके पास पैसा है. सो ऐसे रिटर्न्स को आप लीजिए. ये तो स्टार्टअप का है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये सब नहीं चलता. वहां पे सारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना होता है, एंड आफ्टर दैट विल गेट द रिटर्न्स. सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑलवेज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा रिड्यूस मतलब कम रखिए, ज्यादा मत रखिए. लिक्विडेट कैपिटल और कर्टल
further investment in substandard operations where inadequate returns are being earned. Okay, so जो भी returns है वो earning के लिए हमें अच्छा कैपिटल लिक्विडेट सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का कैपिटल हमें रखना है, ठीक है, अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेट कैपिटल. नेक्स्ट, what is the advantages of EVA? So EVA provide for better assessment of decision that affect balance sheet and income. So statement or trade off between each, though the use of the capital charge against no net operating profit after tax. Easily we calculate net operating profit after tax. So EVA decouples the bonus plans from budgetary target. Okay, it's help to plan a budgetary target also. एक परसेंट होता है ना, जैसे हमें पता चलता है कि 100 में से हमारा 70% परफॉर्मेंस अच्छा है, सो वी आर सेटिस्फाइड. लेकिन अगर हमें पता चला कि 100 में से 20 और 25% परसेंटेज ओनली परफॉर्मेंस है, तो हमें उससे पता चलता है कि नो, वी नीड टू वर्क हार्ड each and every subject. So same thing applicable in organization, companies and corporate also. ठीक है, so EVA covers all aspects of business cycle. Every year का business cycles आपका कैसा होगा, कवर होता है इससे. मतलब जैसे ये साल में 10%, 20%, then 40, 50, 70, 80, that is the cycle. And you easily evaluate last 10 years EVA on the given information. Means जब आपने स्टार्ट किया था तो 10% था, after 10 years you will get 100% or 80% results. ठीक है, so EVA aligns and speed decision making and enhance communication and teamwork, right? तो जैसे ही हमें परसेंटेज पता चल जाता है कि 10%, 20%, 80% है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टार्ट करना शुरू करते हैं एंड हार्ड वर्क करते हैं ऑन दैट बेसिस पे. कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे EVA डज नॉट कंट्रोल फॉर साइज डिफरेंसेस अक्रॉस प्लान्स एंड डिसीजंस. कुछ मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग उस पे. जैसे अगर आपको 10% मिले हैं तो डजंट मैटर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, है ना, मुझे लोग आपको परफॉर्म करना है इसलिए आप कर रहे हो. मैं नहीं सोचूंगी कि आप की तबीयत खराब हो गई या कुछ नहीं, बट आपको परफॉर्म करना ही है एनी हाउ. सो आपका कंट्रोल नहीं रहता है. जब आप मेहनत करते हो तो आप दिन रात मतलब सब छोड़ के उसी के पीछे लगना. दैट इज द नॉट कंट्रोल फॉर साइज डिफरेंस अक्रॉस प्लांट्स और डिविजन्स. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि वो लोग इतना नहीं सोचते, जस्ट वर्किंग. सो EVA इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड दैट कैन बी मल्टीपल्ड बाय मैनेजर्स. यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे इसका इफेक्ट होता है. जो मैनेजरियल इस पे जैसे CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बराबर कैलकुलेट करते हैं. मतलब उनको पता होता है कि लॉट ऑफ डाटा दे हैव एंड एक्सेल शीट्स दे हैव. सो ऑन दैट बेसिस उनको एक फिगर से ही पता चल जाता है कि इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा. सो EVA में फोकस ऑन इमीडिएट रिजल्ट्स विच डायमिनिश इनोवेशंस. अगर हमने कैलकुलेशंस किया, जैसे लॉट ऑफ टाइम हम करते हैं ना कि अभी हमारे पास 5000 है, 5000 में से अगर आज दिन भर में हमने ये काम किए सपोज, तो 5000 में से 5000 चले गए तो आपका कॉस्ट तो 0 आएगा. हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 5000 है और मैं इसमें से 1000 रुपीज तो भी सेव करूंगा, है ना, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेके, अच्छा मतलब ये करके, तो उसका रिजल्ट. एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. जैसे जो क्या बोलते हैं अपने ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं ना, वो डिजाइन करते हैं ड्रेस. तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि 10,000 में वो अच्छा ब्राइडल सूट बना देंगे 10,000 में. ठीक है, तो जब अभी वो भी तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, भाई 10,000 में मुझे खर्चा है तो कम से कम मुझे 3,000 तो भी मिलना चाहिए या 2,000 तो भी मुझे सेविंग होना चाहिए. तो वो क्या करेगा, प्लान करेगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा कि क्या क्या मटेरियल उसे लेना है, किस क्वालिटी का मटेरियल उसे लेना है और क्या क्या उसमें लगाना है ना. फिर उसने सारा मटेरियल मार्केट से परचेस कर लिया, होलसेल में जाके, व्हाटएवर उनके तो ये होते हैं, और उसने बहुत ही सुंदर ऐसा मतलब से एकदम ब्यूटीफुल, एकदम कलरफुल, एकदम अट्रैक्टिव
ऐसा ब्राइडल सूट बना दिया या एक अच्छा सा जो भी है, वन पीस बोलो या जो भी है, तो उसने बना दिया। और जब उसने ओवरऑल कैलकुलेशन किया तो उसे लगा कि यस उसने 2000 बचा लिए हैं, मतलब 20% उसको प्रॉफिट हो गया उस पे। सो दैट इज द कैलकुलेशन। मतलब हमने क्या किया, एक इमेजिन करते प्लान करते हैं ना कि नहीं यार, अगर ये मुझे 10,000 देगा तो मैं उसमें से 2,000 तो भी बचाऊंगा, मेरा भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। 10,000 अगर 10,000 के 10,000 अगर आपने खर्च कर दिए तो आपको तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना, है ना। मतलब सारा खर्चा करने के बाद अगर 2,000 आपके पास बचते हैं तो यस यू आर एक्सपर्ट, आप आगे भी बिजनेस कर सकते हो। सो सेम थिंग हैपन इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट, दे विल think about that particular project, they calculate the cost and they decided um, how much they will give profit or they will have profit, and on that basis they plan, and if their plan is success then definitely EVA calculation is success. So EVA provides information that is obvious but offer no solution in much the same way as historical financial statement. के जो भी इसके पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उस पे हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी हम लोग जो रेगुलर इंफॉर्मेशन होती है, पहले कैसा रहता था कि सॉफ्टवेयर नहीं थे, है ना, हिस्टोरिकल बेस पे। अभी लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सेल तो बहुत ही अच्छा है जिसमें हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इजी हो गया है किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना, हम बहुत इजीली बता सकते हैं। आप सारे लोग, अभी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, as a performance measure, economic value added force the organization to make the creation of shareholders value number one priority. So EVA is changing the way managers runs their business when business decisions are aligned with the interest of the shareholders. So it is only a matter of time before these efforts are reflect in a higher stock price. Okay, so that is the overall conclusion कि how we calculate the stock price is important, shareholders are really important to calculate EVA। मतलब ये जो EVA हम कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट बेस पे कैलकुलेट करके, आज का मार्केट कितना है, कितना डाउन हुआ, कितना उसमें लगेगा, तो बहुत ये होता है। देन हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑल इज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट EVA। ओके, तो हमारा जो ये यूनिट 1 का पार्ट था ना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। वैसे भी यूनिट 1 बहुत ही ये था, क्या था, मास था, फंड फ्लो, देन कैश फ्लो एंड नाउ EVA। So anyone want to ask any question regarding this EVA? So if you have questions, just ask me, and if you don't have questions, now we'll start our second unit. What do we say? Yes, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. So Yes, ma'am. do you understand what is EVA? Yes, It's ma'am. a small Yes, part. ma'am. Okay, and if your exam is offline, so you will ask the cash flow and fund flow statement, so be prepare all that. Okay, all do practice, and EVA calculation is, it's, they will ask him 5 marks maybe, and all formulas are sorry, all items are there, so you just keep in your mind the calculation of EVA, the formula of EVA. Okay, so on that basis you have to calculate EVA. So let me finish this unit 1 and now we'll start our unit 2. Just a second, we'll share our PPT. Okay.
This is the unit 2. Have you seen my screen? Yes, ma'am. Yeah. And here we have seen some capital structure and firm value. Okay. Capital structure and firm value. 1 second. So it's also a big unit. Okay. Let me share you. Yeah. Yes. This is the capital structure and firm value. And what we have learned here, assumptions and definition, net income approach, net operating income, how we calculate, traditional position. We have learned some models, okay? Modigliani and Miller position, taxation and capital structure, trade-off, okay? Some kind of theory, how we calculate PBIT, EPS analysis, ROI, rate of interest, and rate of economy. We have learned here. Then leverage ratio are here and some capital structures planning. So it's a really big unit here, like the PBIT, rate of interest, okay, rate of, it's a big. So we'll try to finish this, and that's why we are taking from next week evening batch for this AFM, because others are also started, your indirect tax and financial modeling and international finance. Lot of subjects are started, so please attend all lectures and tell others. Only 13 people are here. Wait a minute, will, yes. So unit 2 is a capital structure and firm value. Okay, what it is? Give me a 2 minutes, then we'll start. You just read it, okay?
Yes, am I audible? Yes, ma'am. Yeah. So, what is the meaning of capital structure? Okay, so capital structure refer to the proportion between the various long-term source of finance in the total capital of firm. Right? You know, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बहुत सारी, जैसे टाटा हो गया, इनका कैपिटल कितना है आपने देखा कभी वेबसाइट पे ना, उनका बैलेंस शीट या रिपोर्ट देखिए ना, करोड़ के ऊपर 200, 500, 1900 ऐसे करोड़ होता है. Why? क्योंकि every year they will get a huge profit and all profit they added in capital. Therefore, they have a lot of companies, right? Tata Capital, Tata Motors, TCS, even lot of shares available in market. है ना? So capital structure refer to the proportion between the various long-term source of finance in the total capital of firm. जब टाटा ने भी उनका बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना मतलब ये होगा. सो गुड डिसीजंस, गुड फैसिलिटीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट. ओके, और ऐसे इसमें फिर थोड़ा बहुत ये भी हो जाता है तो नो इशू. सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे. सो कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में होना चाहिए. जैसे बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी में काम करने में मजा आता है, सीखने को भी बहुत मिलता है ना. जैसे 1000 लाख रुपीस का क्या कैलकुलेशन करना, करोड़ों में हो तो बात करो, ऐसा हम लोग बोलते हैं हमेशा, राइट? क्योंकि मिस्टेक्स वही होती है ना. जहां पे जितना ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा बिग अमाउंट होगा, उतने बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, उतने ज्यादा फॉर्मूलेज होते हैं, उतना ज्यादा मतलब बहुत कुछ उसमें कैलकुलेशंस होते हैं. रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, क्योंकि लॉज, एथिक्स, एवरीथिंग वी नीड टू फॉलो, right? So a financial manager choose that source of finance which include maximum risk as well as minimum cost of capital. ये तो है ही कि हम लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं ताकि हमारा कम से कम पैसा लग सके. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, है ना, मतलब जीरो से स्टार्ट करो, जीरो में आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो कि उसमें भी आपको प्रॉफिट हो, एवरीथिंग सब डिडक्ट होने के बाद. So here we have seen some kind of structures like the source of long term finance. Source क्या होता है? एक तो प्रोप्राइटर का फंड होगा, इंडिविजुअल होगा तो अगर प्रोप्राइटर के पास पैसा नहीं है तो वो बोरोड फंड के बेस पे चालू करेगा, है ना, उधार लेके. अब प्रोप्राइटर फंड्स में क्या क्या सोर्सेस है? अगर कंपनी का है तो उसमें इक्विटी कैपिटल लगेगा, शेयर होल्डर्स लगेंगे उसको शेयर परचेस करने, प्रेफरेंस कैपिटल भी लगेगा, और रिजर्व एंड सरप्लस वाला कैपिटल भी लगेगा, राइट? नाउ, और बोरोड फंड्स अगर वो लोन पे चालू करता है तो उसे तो लंबा समय लगेगा ना वो लोन पे करने के लिए, है ना, जैसे 20 years, 10 years, जितने भी समय का, तो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना. मतलब अगर 3 years के बिलो है तो शॉर्ट टर्म ये होता है लोन, एंड अबव होगा 3 years के तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है. तो इतने में हम लोग वी आर नॉट, अगर हम बोरोड लोन से स्टार्ट करते हैं तो वी आर नॉट कैलकुलेटेड वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, बिकॉज एवरी मंथ हमें तो ईएमआई पे करना ही है, एवरीथिंग हमें हैंडल करना ही है. हाँ, आफ्टर 3 years के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच वी आर गेटिंग प्रॉफिट, राइट? अदरवाइज नहीं. अगर प्रोप्राइटर का फंड है, जो उसने उसके पास फंड है, जैसे रखा था, कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा था, आज मिल गया तो उसने उसमें स्टार्ट कर दिया बिजनेस, तो उसके पास पैसा था इसलिए उसने शेयर मार्केट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स देके उसने शेयर होल्डर्स क्रिएट किए. बट जीरो से है तो तकलीफ होती है, क्योंकि बोरोड लोगों को तो कोई देता ही नहीं. अगर अपन ने बोल दिया कि नहीं यार ये तो लोन पे है, तो लोगों के मतलब ये हो जाता है ना. अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर इज अलग फर्क पड़ता है. गॉट इट? सो इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द रिस्क अज्यूम बाय द फर्म. जितना अच्छा कैपिटल होगा उतना हम रिस्क ले सकते हैं. अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो हम सोचते जाने दे यार, लॉस होगा तो लॉस होगा, देखा जाएगा. अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं लेगा रिस्क, क्योंकि उसे पता है मैं दूंगा कहां से, है ना. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस.
कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर आपका पास कैपिटल है तो आपका कॉस्ट कितना है कैपिटल फर्म का, वो हमने अभी निकाला था ईवीए में, है ना। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल का है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, एवरीथिंग अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इजीली विल कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। नाउ इट इफेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। यस, आपका लिक्विडिटी कैसा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, बिजनेस की साइक्लिंग कैसा है, रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट्स रियली इफेक्ट। एंड इट इफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म। कंट्रोल का, ओनर का, प्रोप्राइटर का, मैनेजमेंट का उसमें कंट्रोल है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। So determine the and what is the determinant of capital structure? This is nature and size of firm depend on कितना छोटा फर्म है, कितना बड़ा फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स, उसका अर्निंग कैसा है, डेली बेसिस पे है, वीकली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है। डेली बेसिस मतलब जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उनका डेली बेसिस पे हो सकता है। जो लोग मतलब वीकली बेसिस पे सेल वगैरह प्रोडक्ट करता है तो वीकली बेसिस पे कितना होता है, मंथली बेसिस पे। अगर किसी ने ईएमआई वगैरह दे दिया तो बोलता है कि मैं मंथली बेसिस पे करूंगा। सो दैट इज द स्टेबिलिटी। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म कैसा है, कंटिन्यू है, वीकली है, मंथली है, ऑल आर दैट। कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, हमने देखा कि कैश फ्लो, हम लोगों ने फ्यूचर बजट बनाया, फ्यूचर बजट के हिसाब से कैश फ्लो बनाया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड कैश फ्लो विल शो यू द एक्चुअल फैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या और फर्म ऑन दैट बेसिस। जैसे मैंने बोला था उस दिन, आपको दिखाया था ना सारी शीट, कि अगर मैंने मंथली हमारा कैश फ्लो बना लिया कि ये मंथ का मेरा टारगेट है कि 20,000 है ना, तो फरवरी 20,000, मार्च 30,000 या 25,000। सो वी नीड टू अचीव एवरी ईयर और एवरी मंथ, है ना। सो दैट इज, उससे हमें पता चलता है कि कितना कैश फ्लो आया है और कितना खर्चा हुआ है, कितना आने वाला है। So future cash flow is important. Now cost of capital. What is exactly cost of capital? हमने अभी कैलकुलेट किया cost of capital, weightage, cost of capital and all. समझ में आया? So ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्म स्ट्रक्चर के लिए। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स तो पे करना ही है। रिटेनिंग कंट्रोल्स, जो भी अर्निंग्स एंड ऑल आ रही है तो उसमें कैसा कंट्रोल्स है, डिपॉजिट्स पे, इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं बिजनेस में, रेगुलर गोइंग ऑन है कि नहीं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आप या फर्म रोज इक्विटी शेयर परचेस करती है कि नहीं, या सेल परचेस करती है कि नहीं। देन उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्लॉज है, ऑन व्हाट बेसिस वी हैव डूइंग सम काइंड ऑफ सेल परचेस, है ना, रूल्स होते हैं। असेट का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर कैसा है। हम नेचर ऑफ इन्वेस्टर मतलब कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे होते हैं ना, डिपॉजिट्स में। सो नेचर ऑफ डिपेंड मतलब कंपनी के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर होगा तो ऑब्वियसली उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो डिपॉजिट करेगा, या तो फिक्स डिपॉजिट करेगा या फिर कोई म्यूचुअल फंड वगैरह लेगा। लेकिन बड़ी फर्म है तो उनको अगर ये हो जाता है तो वो शेयर पे ही, लॉन्ग टर्म पे ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर income tax or IT, whatever. So it refers that EBIT level at which EPS remains some irrespective or alternative debt equity mix, मतलब जो भी डेब्ट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में उस पे कैलकुलेशंस किया जाता है। EBIT रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दैट इज द फॉर्मूला, राइट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन लेवल ऑफ EBIT, ठीक है। सो ये फॉर्मूलेज है, हम आगे देखेंगे। नाउ हाउ वी कैलकुलेटेड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना, दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी कैलकुलेटेड एंड हियर आर द मेंशन व्हाट इज एग्जैक्टली। एक्स मींस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, इंटरेस्ट अंडर ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान, इंटरेस्ट अंडर ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान 2, S1 S2, ठीक है, I1 I2, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, टैक्स रेट, preference dividend, amount of equity share under financial plan and amount of equity share under financial plan 2. This is the break even point. On that basis we have calculated, okay, EBIT, equity. So इसको तो हम मतलब अगर आपने पूरा चार्ट अच्छे से बना लिया तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल में ये प्रिपेयर हो जाएगा।
सो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में क्या क्या आता है, हमें क्या क्या पढ़ना है, जब भी मैंने बताया नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, ये चारों अप्रोच हमें पढ़ने हैं, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी देखेंगे। सो नेट इनकम क्या है, दिस इज सजेस्टेड बाय डेविड डूरन। Approach the value of the firm is increase and decrease overall cost of capital by increasing the proportion of debt financing in capital structure. So it is due to interest rate are lower than dividend rate and benefit of tax because it's deductible expenses. जो भी expenses है वो हमें deduct करके करना है. So assumptions of net income approach, the cost of debt is lower than cost of equity and the risk परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज, रिस्क जो है वो चेंज नहीं होती, एक बार आपने रिस्क ले ली तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको उसे फुलफिल करना है और इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है रिस्क में। नेक्स्ट, हियर वी हैव सीन सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ लिवरेज, है ना, कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेम आ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो सेम, यहाँ पे भी आपका सेम। सो ये जो कर्व आपने निकाला है यहां से ले यहां तक का आपका मैच हो रहा है, मतलब एकदम जो अप्रोच है आपका लिवरेज का, द कॉस्ट द इफेक्ट ऑफ लिवरेज ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनआई अप्रोच, देखो कितना सही। तो ये बहुत ही कम आता है ऐसा, सेम टू सेम, मतलब प्रॉफिटेबल। नेट ऑपरेटिंग इनकम, एनआई मींस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या होता है एग्जैक्टली कि market value of the firm is not affected by the changes in the capital structure and the overall cost of capital remain constant irrespective of debt equity ratio। अगर आपका debt equity ratio जो है, जो हम कैलकुलेट करते हैं on the basis of the value, वो आपका irrespective नहीं होना चाहिए, constant होना चाहिए, same आना चाहिए। What is the assumption of net operating? So it's all our theoretical part, okay? So cost of debt is lower, cost of equity, risk perception of investor is not changed, okay? Here also no corporate tax, यहाँ पे भी जब टैक्स नहीं है तो यहाँ पे भी इसका जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, सेम अप्रोच, ओके? नॉन प्रॉफिट अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, यहाँ पे भी some kind of operational capital structures can be reached by proper debt equity mix। जो भी इक्विटी होती है ना, proportion debt, overall cost of capital start increasing and market value being to decline, मतलब जो मार्केट में वैल्यू है अगर वो कम जाता है, जैसे शेयर मार्केट कैसा अप एंड डाउन होता है, तो जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डेली बेसिस पे, अगर थोड़ा सा भी उनका ध्यान हट गया तो उनको लॉस होता है। हाँ, अगर 100-200 का हो गया सो दे विल एग्री, यस यार 100-200 हो गया, इट्स नो इनफ, बट अगर ज्यादा लाखों का हो जाता है तो दे विल हर्ट, है ना। सो दैट इज द प्रोपोर्शन। ये देखिए स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कैलकुलेशंस है, हम लोग आगे भी देखेंगे ऐसे। नाउ वी हैव सीन द अप्रोच ऑफ मोडिग्लानी मिलर इज लाइक दैट इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स when corporate tax is exits, ये दो है। क्या दिया है इसमें, इसके भी assumptions है कुछ। कैपिटल मार्केट आप परफेक्ट होना चाहिए, होमोजेनियस रिस्क क्लासेस ऑफ फर्म, हमें रिस्क तो लेनी है बट सोच के लेना है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम, 100% पे आउट एंड नो कॉर्पोरेट टैक्स। In the absence of corporate tax, what it is actually, this can be justified arbitrage process, okay? So capital structure decision of firm is not affect is market value पे इसका effect नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। Now when corporate tax are assumed to exist, is it to benefit of tax because tax is deductible expenses, tax deduct करके आपको profit ये करना है, so it's expenses। Now the optimum capital structure is a capital structure as which market value per share is maximum and the cost of capital is minimum,
ठीक है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मार्केट वैल्यू है पर शेयर का, उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जैसे वो डिसीजंस प्लानिंग करके जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट। सो दिस इज सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम रिस्क, minimum cost of capital, sufficient liquidity, retaining control, avoidance of unnecessary restrictions। ठीक है, सो ये सारी जो चीजें हैं उसमें हमें ऐड करनी होती है, सारी चीजों के बारे में सोचना होता है कि इसका सिंप्लिसिटी कॉस्ट कितना आएगा, देन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, रेगुलर वर्क करना चाहिए या वीकली वर्क करना चाहिए, मिनिमम रिस्क, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मिनिमम रिस्क। देन मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ वी, मतलब कम से कम है ना, कुछ तो भी 5,000 2,000 जो भी स्टार्ट करते हैं जीरो से। सफिशिएंट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो है वो सब मतलब कम से कम होनी चाहिए। रिटेनिंग कंट्रोल, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो या जो भी है उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। एंड अवॉइड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। अभी इसका जो थ्योरी है मोर्निंगग्लानी मिलर की, तो उसका कहना है कि जीरो टैक्स होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस। So trade-off theory, singling theory, debt financing as a managerial constraint. So मतलब मोर्निंगग्लानी मिलर की थ्योरी जो है वो प्रूफ करती है अंडर अ वेरी restrictive sets of assumptions, so that a firm's value is unaffected by its financing mix, right? So जो भी assumptions, जैसे आपके पास अभी पता चला आपको ये साल में आपको ने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके प्लान कैसे होंगे, एकदम सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि पहले ईयर में जो भी आपने रिस्क ली थी या जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ था, गॉट इट, तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया कि लास्ट टाइम ऐसा किया था तो क्या इफेक्ट हुआ, तो इस बार आप डिसीजन चेंज करेंगे। सो दैट इज मिक्स होगा वो। देयरफॉर कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट and any increase in ROE, so results from financial and leverage is exactly offset by increase in risks. Risks पे depend होगा वो, risks कैसे, how we calculate risks, leverage. So corporate tax laws favor debt financing over equity financing. So ये theoretical है, जिसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। So EBIT क्या है, इन्वेस्टर्स क्या है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, वो सब है इसमें। ट्रेड ऑफ थ्योरी भी वही है कि थ्योरी इग्नोर्स बैंक्रप्टी, है ना, मतलब अगर आप थ्योरी के हिसाब से बिजनेस करते हैं या प्लान करते हैं तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आप बैंक्रप्टी नहीं, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं आ सकता है। लेकिन अभी पेंडेमिक में बहुत आया था, बहुत लोगों ने सब कुछ मतलब lot of things they sold in the market, okay, for survive themselves and their family also. So which increase as more leverage is used, at lowest leverage level tax benefits outweigh bankruptcy cost. हम कितना बैंक, जैसे लोन्स है बहुत सारे 10 लाख का, 15 लाख का, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हाउ दे विल पे। अभी तो इंश्योरेंस कंपनीज ने रिस्क लेना चालू कर दिया है कि वो लोग भी मतलब लेते हैं रिस्क कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो दे विल पे, राइट। बट सभी उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर हम वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करती है तो ही हमें मिलता है। तो लिवरेज जो होता है वो क्या पहले से ही कैलकुलेट किया जाता है इन सब चीजों में, कि हाउ वी कैलकुलेट एंड हाउ वी सेव इट, है ना। सो एट हाई लेवल्स बैंक्रप्टी कॉस्ट आउटवेट टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट अगर आप रिटर्न्स फाइल करते हैं एवरी ईयर विदाउट मिस्टेक, सो इट्स रियली बेनिफिट्स फॉर यू। एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट दैट बैलेंस दिस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। सिग्नलिंग थ्योरी में भी मॉड्यूल्स का अच्छा यूज होता है। स्टॉक सेल्स परचेस में इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका कैलकुलेशंस, कुछ बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें अगर हम लोग फिगर भी डालें तो ऑटोमेटिकली हमें उसका
कैलकुलेशन। जैसे आपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखा है क्या? डू यू नो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल? यस और नो? हेलो? नो मैम। तो आपने कभी लोन वगैरह जैसे गाड़ी परचेस कर ली हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसमें सेकंड सेम में तो था ना ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, पढ़े होंगे आप, हाउ वी कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल? नहीं पढ़े? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाइक खरीदी 2 लाख की, ठीक है, तो 2 लाख के बाइक पे आपको साल का 12 मंथ या सॉरी मंथ का आपको 12 मंथ 12% और 10% के हिसाब से आपको ईएमआई पे करना है। तो उसका मतलब कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आपने लिया है ना, तो 3 साल के लिए उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन गया, मतलब वो 0 हो जाता है लास्ट में, है ना। देन अगर 5 इयर्स के लिए वैसे ही होम लोन भी लेते हैं तो सेम आपका 0 आ जाता है 20 इयर्स के लिए। तो उसमें क्या क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट होता है और दोनों का मिला के आपका ईएमआई कैलकुलेट होता है, तो उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो भी लोग लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको ये समझ में आएगा, उसका भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिकली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेल में भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है एक्सेल में भी, ठीक है। सो दिस इज द मॉडल्स जो हमें यूज करने होते हैं, उनके एप्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं अभी मार्केट में जो आ गए हैं, on that basis we calculate. Now EBIT and EPS analysis. EPS को कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट चार्ज पर एनम, देन इंटरेस्ट माइनस टैक्स, इंटरेस्ट कितना है, टैक्स कितना है, और उसका माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स, जैसे आप शेयर मार्केट में है तो उसका डिविडेंड तो रहता ही है ना, सो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो कितना आता है कैलकुलेशन? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने कितना शेयर्स लिया है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे आगे प्रॉब्लम्स में। अभी यहाँ पे और एक फॉर्मूला दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस इज एज फॉलोज, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, सो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय एम। ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसका दोनों का भी, इसका भी और इसका भी। फॉर्मूले याद अगर है आपको तो आप कोई भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, माइंड में होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या है? सेल्स अगर आपको दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये हो गया आपके ऑपरेटिंग, जैसे हमने ईवीए में देखा था, है ना। तो ऑपरेटिंग इनकम एंड स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका वो लेस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका भी स्क्रीनशॉट लिखिए कि हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कैसे करेंगे और अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लेस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। डेब्ट पे जो भी इंटरेस्ट है वो लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, ठीक है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, देन लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करते हैं तो इक्विटी अर्निंग्स आएगा,
So equity per share divided by equity earning divided by number of shares. समझ में आया कैसे कैलकुलेशंस करना है? ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम में दी रहेंगी एंड ऑन दैट बेसिस पे आपको फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है ईपीएस. ठीक है, चलिए छोटा सा प्रॉब्लम है, देखते हैं आता है कि आपको. ABC company has currently an all equity structure, so consisting of 15,000 equity shares of rupees 100 each. ठीक है, they have 15,000 equity shares जिसकी प्राइस कितनी है 100 rupees per share. So the management is planning to raise another 25 lakh to finance a major performance of expansion, and it consider 3 alternative methods of financing. ठीक है, 3 alternative methods पे उनको कैलकुलेट करना है. So to issue 25,000 equity share of rupees 100 each, to issue 25,000 shares 8% debentures of 100 each, and to issue 25,000 preference shares of rupees 100 each. क्या क्या कर रहे हैं वो? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं 8% से, और प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं 100% से. So the company EBIT will be 8 lakhs. कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? यह है रहेगा 8 lakhs. Assuming a corporate tax of 50%. कॉर्पोरेट टैक्स कितना रहना रहेगा? 50%. So determine earning per share in each alternative. तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि 20,000 इक्विटी पे कितना आएगा अर्निंग पर शेयर, 25,000 प्लस 8% पे डिबेंचर्स कितना आएगा, और 25,000 प्रेफर्ड शेयर्स कितना आएगा. गॉट इट? कैलकुलेट करते चलिए. तीनों ऑल्टरनेटिव ले लिए, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3. ऑल्टरनेटिव 1 में इक्विटी फाइनेंस है ना, इक्विटी शेयर्स दिया है, राइट. ऑल्टरनेटिव 2 में डेप्ट है मतलब डिबेंचर्स है, सॉरी डेप्ट है मतलब डिबेंचर्स है, एंड ऑल्टरनेटिव 3 में शेयर फाइनेंसिंग है मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है ना. तो अभी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो 8% दिया हुआ है डेप्ट का, ठीक है, बाकी जगह तो 100 ईच के हिसाब से लिया है, तो हमारा जो डेप्ट है वो कितना है 8%. तो इक्विटी में भी 8 रहेगा और प्रेफरेंस में भी 80 का, क्योंकि यहाँ पे द कंपनी EBIT विल बी 8 lakhs दिया है ना, मतलब सभी के लिए. तो अज्यूमिंग 8 लाख में मतलब हमें तीनों प्रेफरेंस पे 80 लाख लेना है. 8 लाख पे इक्विटी कितना होगा, 8 लाख अगर है तो डिबेंचर्स कितना होगा, 8 लाख अगर है तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना होगा. ओके, और टैक्स हमें 50% लेना है. सो यहाँ पे हमने EBIT जो है मतलब बिफोर इनका इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना ले लिया, तीनों जगह पे 8 लाख 8 लाख 8 लाख, ठीक है, लेस इंटरेस्ट. ठीक है, अभी इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट? एनीवन? बताइए कोई, बताइए कोई. अभी देखिए यहाँ पे डिबेंचर्स के कॉलम में लिया, मतलब क्या था 10% है ना, 100%. तो वहां पे 8% ऑलरेडी उन्होंने डिडक्ट किया है, तो 10 - 8 कितना होता है 2. यहाँ पे आपको एजम्पशंस बहुत कंसिडर करना है. गॉट इट? प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे कितना दिया है 8% है ना, 8% डिबेंचर्स 100 ईच मतलब 10 है ना, 10 - 8 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे 2% का रिस्क फैक्टर है, तो लेस इंटरेस्ट 2 किया. तो यहाँ पे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन आया 8 - 2 6, और 8 यहाँ पे 8 0 था इसलिए. ठीक है, अभी हमें कॉर्पोरेट टैक्स 50% लेस करना है. तो 8 लाख के 50% 4 लाख, 6 लाख का 50% 3 लाख, अगेन 8 लाख का 50% 4 लाख. तो ये क्या आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स.
Yes, anyone want to ask any question? No, ma'am. हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया आपका? 4 लाख, 3 लाख एंड अगेन 4 लाख. सो डिविडेंड दिया है क्या? डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज 2. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड इन 2%, where we have calculated in 3 preference shares, alternative 2, alternative 1. ठीक है, सो alternative 3 में ये जो हमने निकाला था डेप्ट का 2% है ना, 10 माइनस, सो 2% लिया. देन यहाँ पे कैलकुलेशंस किया तो 2 आया. ठीक है, 4 अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, 432. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया फिर? 4 into 100 ईच दिया था ना हमको, है ना, प्रॉब्लम में हमें 100 ईच दिया है ना, 100 ईच. यस, सो डिवाइडेड करो 4 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 3 lakhs को एंड 2 को, तो वो आता है 40,000, देन 15,000 एंड 15,000. आता है कि? कैलकुलेट करिए फटाफट. Yes, ma'am. नाउ ईपीएस कितना है आपका? अर्निंग पर शेयर, उसको डिवाइड करते हैं तो ₹10, ₹20 एंड ₹13.33. सो विच वन इज ऑल्टरनेटिव 2 इज बेस्ट? अगर हमें ऐसा, अगर किसी ने पूछा तो, है ना, बिकॉज इट्स अ, बट इसमें डेप्थ है, रिक्स है, इसमें डेप्थ है ना. और अगर हम ऑल्टरनेटिव 2 को छोड़ देते हैं तो विच वन इज? ऑल्टरनेटिव 3 इज गुड बिकॉज इट्स गेटिंग 13.33%, है ना. सो ऐसे हमें डिसाइड लेना, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है. मैम Got it? लास्ट को इसकी नोट्स लिखनी पड़ती है ना? हाँ, डिसीजन लेना होगा आपको, डिसीजन देना होगा विच वन इज बेस्ट, है ना. ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में आपने सीखा होगा कि विच वन इज बेस्ट, सो यू हैव टू कैलकुलेट. या फिर आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम में पूछा है. लेकिन हमारे प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है कि तीनों अल्टरनेटिव को कैलकुलेट करना है और अर्निंग पर शेयर निकालना है ईच अल्टरनेटिव का. तो हमने तीनों का कैलकुलेट किया, तो हाँ एज्यूम किया, तो अल्टरनेटिव 1 में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका 10% आया. अल्टरनेटिव 2 में 20% आया और अल्टरनेटिव 3 में हमने 13.33% निकाला. नेक्स्ट, अभी इसमें बहुत सारी मेथड्स है ना. तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट मेथड, अगर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा उसमें, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस टैक्स एक्सपेंसेस. ये दोनों फॉर्मूले हैं. तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में क्या दिया है. अगर प्रॉब्लम में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और तो फिर सिर्फ प्रॉब्लम दिया है तो हमें पहला वाला फॉर्मूले से सारे मतलब सारी चीजों को कैलकुलेट करना होगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने होंगे, ओपनिंग एंड ये सारी चीजें अगर दी है मेथडिकली, मतलब कॉस्ट शीट के हिसाब से, तो हम लोग फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि सारी चीजें उसमें अवेलेबल है. सिर्फ माइनस करके उसका फिगर आउट निकालना है. लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट दिया है आपको, P&L या इनकम स्टेटमेंट दिया है, तो सेकेंड वाला मेथड आपको यूज करना है. नेट इनकम लेना है, मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पे कितने एक्सपेंसेस हुए, प्लस टैक्स एक्सपेंसेस. ठीक है, तो दोनों मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे ये एक और प्रॉब्लम है कि देखते हैं. The income statement of Harry Corporation reported the following activities: sales revenue from operations 25 लाख दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14 लाख दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 4 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया है 2 लाख,
इनकम टैक्स दिया है 30,000. सो कैलकुलेट EBIT. सो नाउ हियर यू हैव डिसाइडेड व्हिच formula you have to use. So first formula here we have to use. Now solution is given here कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सबसे पहले तो रेवेन्यू कितना है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ही है ना. सेल्स ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल्स से रेवेन्यू मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सेल्स माइनस परचेस एंड ऑल. तो 25 लाख माइनस 14 लाख, हाउ मच इट इज 11 लाख, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका 11 लाख, विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम. नाउ एड नेट इनकम, है ना. सो नेट इनकम के लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड टैक्स एक्सपेंसेस. सो आपका जो नेट इनकम आया जो ग्रॉस प्रॉफिट का वो कितना था 14 लाख, सॉरी 11 लाख. 11 लाख में से आपका सॉरी आपको क्या करना है, नेट इनकम निकालना है. तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 11 लाख. 11 लाख में से नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका 4 लाख, देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपके 2 लाख हो गए एंड इनकम टैक्स आपका 30,000. सो ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको टोटल कितना मिलता है 4,70,000. गॉट इट. नाउ कैलकुलेट EBIT, इनकम बिफोर इनकम एंड टैक्स. तो कितना आता है, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इट 25 lakhs. डायरेक्ट मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो, और इसका इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 25,000 माइनस 14,000 माइनस 4,000. ठीक है, 25,000 क्या था आपका रेवेन्यू, सेल्स. सेल्स में से आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपका 4 लाख क्या आया था आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया. सो आपका EBIT कितना आता है 7 लाख. बहुत इजी है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से अगर जाते हैं तो. और इनडायरेक्ट मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने पहले डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया, तो अभी इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करिए. इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड टैक्स एक्सपेंसेस. सो यहाँ पे नेट इनकम आया आपका 4,70,000. ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में दिया है 2 लाख और टैक्स एक्सपेंसेस भी दिया है. तो आप दोनों को अगर क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा. समझ में आया? बहुत ही सिंपल है. पहले वाला जो देखा था वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, थोड़ा सा मतलब अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए वो बहुत ही इजी है. तो कौन सा आपको अच्छा लगा, ये वाला कि ये वाला, वो वाला? बोथ मेथड यू हैव टू यूज. हाँ, ये सिंपल है ना, क्योंकि सारी चीजें प्रॉब्लम्स में दी है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है. इफ यू नो द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट EBIT ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, सो यू कैलकुलेट इजीली. ये एक प्रॉब्लम है, इसका आपको मतलब आप इस तरह से क्या इस मतलब ये वे से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वे से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम प्रॉब्लम है ना. तो ये वे भी सही है, आंसर उतना ही आना है. नाउ ROI माइनस ROE एनालिसिस. ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ वी कैलकुलेट. तो ये फॉर्मूला भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कि रिटर्न ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मींस डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, कॉस्ट कितना है उसका. ठीक है, DE मतलब डेप्ट इक्विटी रेशो एंड 1 minus T means tax rate. So on that basis we calculate rate of interest and rate of equity. Okay. Next, ratio analysis. Okay, first we see how to calculate ratio analysis. Interest coverage ratio. Formulas are here: earning before interest and tax and interest on debts. आप सारे फॉर्मूलेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपीज पे होने चाहिए सारे फॉर्मूलेज. फिर ये मत बोलिएगा कि ये बताया नहीं था, ये नहीं हुआ. ठीक है,
मैं सारे प्रॉब्लम्स आपको एक साथ ही दूंगी, एक शीट, एक पेपर पे, तो वो सब इसमें आपको ईवीए भी कैलकुलेट करना है, आपको ईबीआईटी ईपीएस भी निकालना है, और ये वाले भी। तो फॉर्मूलाज आप रखिए अपने पास। ओके, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो formula is earning before interest and tax divided by interest on debt, है ना। नेक्स्ट कैश फ्लो कवरेज रेशो क्या दिया है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश चार्जेस डिवाइडेड बाय लोन रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट एंड सॉरी डिवाइडेड इंटरेस्ट ऑन डेब्ट प्लस 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। चलिए अभी यहाँ पे एक छोटा सा ये दिया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल रेशियो यूज्ड टू कैलकुलेट द बेनिफिट एन इन्वेस्टर विल रिसीव इन रिलेशन टू देयर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। सो इट इज most commonly measured as net income divided by the original capital cost of investment. So the higher ratio, the greater the benefit on, है ना, रेशियो पे डिपेंड करेगा। सो फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे फॉर्मूलेस है, बट यहाँ पे आरओआई निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट गेन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बेस। प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, लेकिन यू आपको पहचानना है कि क्या एक्चुअल करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आरओआई का फॉर्मूला, यू हैव टू कैलकुलेट आरओआई देन आरओई, सारे फॉर्मूलेज है ये, सारे पहले ले लेते हैं। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। एन इन्वेस्टर्स परचेज प्रॉपर्टी A, so which is valued as rupees 5 lakhs. 2 years later, the investor sell the property for 10 lakhs. ठीक है, so we use the investment gain formula in this case. ROI निकालना है, 10 lakh minus 5 lakh divided by 5 lakh, 100%, मतलब उसको प्रॉफिट ही हुआ है, बहुत ही इजी है ना। Then example 2, an investor buys 1000 worth of stock and sell them 1 year later when their value reaches $1500 या जा जो भी था, तो 500 का यहाँ पे, ये तो अपन ओरली भी बता सकते हैं, बट वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला यूज करके हम कितना इफेक्ट निकाल सकते हैं वो है। सो इन दिस केस द नेट प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब करंट वैल्यू माइनस कॉस्ट, सो वुड बी 500, है ना, 1500 माइनस 1000 एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड बी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम सेल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑन सेल इनटू 100, सो 50% आरओआई, मतलब अगर देखा जाए तो हमें 50% प्रॉफिट हुआ है अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। A company spent 5,000 on a marketing campaign and discover that it increased revenue 10,000. कितना हुआ है, 10,000. So in this case, the return on investment would be how? Same, increase revenue divided by market cost into 100. So increase revenue 10,000, market campaign मतलब market cost is 5,000 into 100 is equal to 100%, है ना। सो इसका 100% हुआ है क्योंकि 5,000 प्रॉफिट हुआ है ना उसको, है ना, मतलब उसका तो 100% उसको मिल गया वॉट एवर ही। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ फोर्थ में क्या दिया है, होम ओनर इज कंसिडर्ड रिनोवेटिंग देयर होम टू ऐड एन एक्सटेंशन एंड पूल, उसको स्विमिंग पूल वगैरह बनाना होगा। द होम इज करंटली अप्रेज एट 5 lakh. Yes, and the renovation will cost 1 lakh, but are expected to increase the value of the home by 2,50,000. So in this case, the return on investment would be क्या होनी चाहिए? So उसने net value increase लिया 1,50,000 divided by renovation cost डाला 1 lakh.
इंटू 100 तो 1.50% उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया. उसको कितना 1.50% इन्वेस्टमेंट करना पड़ा रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन के लिए. गॉट इट. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है. वो क्या पूछते हैं एग्जाम में, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी इनकी, है ना. जितने आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला, जितने अच्छे से आपको याद होंगे, उतना अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा. सो आरओई ड्राइवर्स, व्हाट इट इज आरओई ड्राइवर्स, ये हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, है ना. आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए. आप सारे फॉर्मूलेज कॉपी पे नोट डाउन करके रखिए, ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट मंडे ही होगा, शायद इवनिंग में है, आपको मिल जाएगा टाइम टेबल. सो ऑन दैट डे वी विल कैलकुलेट आरओई ड्राइवर्स एंड ऑल, ठीक है. यस, एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चंस? No, ma'am. समझ में आया? सारे फॉर्मूले, सेकेंड यूनिट पूरा फॉर्मूला बेस्ड है. ओके, यू रीड इट केयरफुली. मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स की शीट्स जो है जल्दी देती हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको. लेकिन अभी फॉर्मूलेज ही याद करिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है. Okay, ma'am. ओके, सो हैव अ गुड डे. बाय बाय. मैम वो टेक आरओआई केयर. Thank you, का फॉर्मूला दिखाओ ना. काय? आरओआई का फॉर्मूला. हाँ, आरओआई का फॉर्मूला क्या? स्लाइड दिखाओ ना वो. उसका स्क्रीनशॉट लेना है वो. ये वाला, ये. हाँ ये वाला मैम. यस. ओके मैम. ओके.